नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 12th बायोपेटाइट के दौरान जो भी एमओयू साइन किए गए थे, उन एमओयू पर अब धीरे-धीरे एक्शन हो रहा है और उन एमओयू के आधार पर जो आईबीए द्वारा कुछ मैटर्स डीएफएस और गवर्नमेंट को रेफर किए गए थे, उनमें से धीरे-धीरे क्लियरेंस आ रही है। उन्हीं में से एक मैटर है रिजाइनीज को पेंशन देने की। ये मैटर आईबीए और यूएफबीयू के बीच में एमओयू साइन किया गया था और उसके आधार पर ही डीएफएस को भेजा गया था अप्रूवल के लिए, नो ऑब्जेक्शंस के लिए। तो अब डीएफएस द्वारा अपना नो ऑब्जेक्शन भेज दिया गया है। इस संबंध में जो भी कम्युनिकेशन आईबीए और डीएफएस और यूनियंस द्वारा जारी किए गए हैं, मैं इस वीडियो में शामिल करना चाहूँगा ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। आइए, आईबीए का क्या कम्युनिकेशन है। दोस्तों, आईबीए द्वारा अपने एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ये सर्कुलर इशू किया गया। सर्कुलर नंबर है CIR/HR एंड IR G2/2023-24/0913 March 16, 2024. Chairman SBI, MD and CEO of PSBs. Dear sir, madam, extending an option of pension to the resignees who were otherwise eligible to join the pension scheme under the Bank Employees Pension Regulation 1995. Department of Financial Services, Ministry of Finance, Wide Letter EF number 4/8/1/2023 IR dated 16th March 2024 has conveyed their no objection for extending an option of pension to resignees who were otherwise eligible to join the pension scheme under Bank Employees Pension Regulation 1995 but were not offered second option to join the pension scheme as they had resigned from the service of bank at relevant time as invoices in settlement dated 27/4/2010. Pending amendment to respective banks BPR 95. A copy of the said letter of Department of Financial Services, Ministry of Finance is enclosed herewith for your ready reference and necessary action. Warm regard, yours faithfully, ब्रजेश्वर शर्मा, सीनियर एडवाइजर HR एंड IR। दोस्तों, ये लेटर जो आईबीए ने दिया है उसका जो इनक्लोजर है वो डीएफएस की तरफ से जो अप्रूवल दी गई है वो ये साथ में मैं दिखाना चाहूँगा। ये डीएफएस का जो EF नंबर 4/8/1/2023 IR ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का 16 मार्च 2024 का ये लेटर है। आईबीए को एड्रेस किया गया है और इसके वही हेडिंग है। इसमें जो मेन सेकंड पैरा में उन्होंने लिखा है मैं उस पर ही जिक्र करना चाहूँगा। इन दिस कनेक्शन द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू कन्वे नो ऑब्जेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू Indian Bank Association IBA to advise PSB to extend an option of pension pending amendment to respective bank employees. Pension Regulation 1995 to the employees and officers who are in the service of bank on or after 1/1/1986 and joined the bank before 1/4/2010 and have resigned from the service of bank on or before 26/4/2010 and were otherwise eligible to join the pension scheme while in service. Second condition है who agreed to refund to the bank the entire bank's contribution to provide fund along with accumulated interest thereon received by them at the time of their resignation or later from the bank. And third condition है who agreed to execute an undertaking as per the format prescribed by IBA copy enclosed. तो ये तीन कंडीशन के साथ इन्होंने ये अप्रूवल भेजी है और इसमें अगले पैरे में है इट इज फर्दर स्टेटेड दैट
All such eligible former employees or officer resignees and their surviving spouse or eligible family members can join the pension scheme subject to the following condition. Condition number one is the pension will be paid prospectively from the month following the month in which the bank receives the bank's contribution towards the provident fund and along with accrued interest thereon, received by the former employees or former officer at the time of resignation or later. Second condition is the commutation of pension will not be extended to them and they will not demand. थर्ड कंडीशन है थर्ड जो कंडीशन है पेंशन shall be computed as per the applicable provision of pension regulation and as applicable to the relevant bipartite settlement or joint note in which he or she resigned. Yours faithfully, विजय शंकर तिवारी। और इस तरह से ये लेटर कम्युनिकेशन को आईबीए ने भेजा है और उसके बाद जो आईबीए ने जो अंडरटेकिंग सजेस्ट की थी वो अंडरटेकिंग ये है, ये मैं पहले किसी और वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। इस अंडरटेकिंग को भर करके देना पड़ेगा बैंक रिजाइनीज को या उसके स्पाउसेस को इन केस ऑफ फैमिली पेंशन। तो इसी संबंध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा भी ये सर्कुलर नंबर 29/78/2024/20 17 मार्च 2024 का इशू किया जो कि ऑल यूनियन और मेंबर्स के लिए है। डियर कॉम्रेड, 12th bipartite settlement government cleared the proposal to extend opportunity for resignees to opt for pension scheme. During negotiations for the wage revision, UFBU had taken up and IBA agreed and MOU was signed between IBA and UFBU on 19th November 2023 to extend an option to resign employees or officers to join the pension scheme. This was duly recommended by IBA to the government and we are happy to inform our union that the government has given its approval for the same. IBA will now finalize the details and advise the banks to extend the offer to the eligible resignees or employees or officers. This is a very significant achievement of UFBU because this is not available to resigned employees in central public state government RBI LIC और GICS। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट बताया है लेकिन इसमें थोड़े से ही कर्मचारी या रिजाइनीज होंगे जो कि अभी बचे हुए हैं तो उनको भी मौका मिल जाएगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें फिर से उन्होंने कौन एलिजिबल होंगे उसके बारे में और एक टेबल बनाई है जो कि पीछे एक सर्कुलर इशू किया था उस पर भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी यही चीज़ें थी। फिर भी इनको रिपीट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज चला जाए। इसमें who is eligible employees and officers who were in service of the bank on or after 1186 and had joined the bank before 1/4/2010 and who have resigned from this service of the bank on or before 26th April 2010 and who were otherwise eligible to join the pension scheme while in service and in case of death after resignation, the surviving spouse and eligible family members can opt, they will get family pension. तो इससे ये क्लियर होता है कि फैमिली पेंशन भी मिलेगी जो रिजाइनिंग ऑफिसर्स एम्प्लॉय सर्वाइव नहीं किए हुए और उनके स्पाउसेस हैं या एलिजिबल डिपेंडेंट हैं उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्या थी? 20 ईयर सर्विस एंड अबव एट द टाइम ऑफ द रेजिग्नेशन। अमाउंट टू बी पेड टू द बैंक, कौन सा अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक को ये भी उन्होंने क्लियर किया। दे शुड एग्री टू रिफंड टू द बैंक द एंटायर बैंक कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड along with accumulated interest thereon received by them at the time of their resignation from the bank, no additional interest thereon। चौथा इन्होंने जो पॉइंट लिखा है पेंशन पेबल ऑन एज पर द रेगुलेशन,
50% of the pay if completed 33 years service at the time of the resignation. Other cases 20 to 32 years. 50% of the pay multiplied by service divided by 33. Pension or family pension payable prospectively. No facility of commutation. तो इस तरह से ना तो कम्यूटेशन होगा और उनको जो पेंशन मिलेगी वो प्रोरेटा बेसिस पे मिलेगी। फैमिली पेंशन भी उसी ढंग से दी जाएगी और ये प्रोस्पेक्टिव डेट से होगा जिस दिन बैंक का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट को वापस कर देंगे, उसके अगले महीने से पेंशन चालू हो जाएगी। ये कम्युनिकेशन था योर्स कॉमरेडली सी.एच. वेंकटचलम, जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, इस तरह आपने ये तीनों कम्युनिकेशन देख लिए हैं और इससे काफ़ी स्थिति क्लियर हो जाती है कि अब बैंक रिजाइनीज को पेंशन के लिए एक ऑप्शन दी जाएगी। ये बैंक अपने बोर्ड में अप्रूव करा करके तब ऑप्शन देंगे, सर्कुलर निकालेंगे। इन द मीन टाइम मेरा सभी अपने दर्शकों से, सब्सक्राइबर्स से अनुरोध है कि जो उनके दोस्त हैं या कोई जानने वाले हैं, उनको इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए कम्युनिकेट कर दें ताकि वो अपने मानसिक रूप से तैयार रहें और वो जल्दी से इस योजना को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हालांकि लेफ्ट ओवर बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स होंगे, लेकिन उनके फैमिलीज़ को उसका फ़ायदा मिल सकता है। उन रिज़ाइनिंग ऑफिसर्स को या एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा मिल सकता है जिनको कि अभी तक मौका नहीं मिल पाया था। इस संबंध में ये वीडियो आप उन परिवारों या उनके सदस्यों को शेयर कर दें या उनकी जानकारी में डाल दें, तो आप लोग भी उनके लिए अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। कई बार ये वीडियो या ऑफिशियल सर्कुलर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते और जो समय सीमा होगी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की, उस समय सीमा से पहले यदि वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वो फिर वंचित रह जाएंगे। उम्मीद की जाती है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि जो भी बेनिफिशरीज हों उनको उसका बेनिफिट मिल पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को और उनके साथियों को लाभ होगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और यदि कोई और जानकारी चाहिए या कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में या बैंक के स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।